exercise 8.2 and question number 1 from this exercise, and question is कि ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoint of sides कौन कौन सी AB, BC, CD and AD. Then show that S are parallel to AC and S are equal to half of AC, and then PQ equal to SR भी हमें प्रूव करना है. एंड फाइनली वी शैल हैव टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम. क्लियर? सो हियर द गिवन पार्ट इज, व्हाट इज द गिवन पार्ट? ट्रायंगल, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन टू अस एंड P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC. तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है वो हमें पता पड़ गया. प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक. एंड इन ट्रायंगल ABC आप देखोगे कि AP इक्वल टू किसके? PB. वाई? बिकॉज इट इज गिवन. एंड CQ इक्वल टू किसके बेटा? BQ के. ये भी क्या है? गिवन है. एंड वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इन ए ट्रायंगल विल पैरेलल टू थर्ड साइड. इस ट्रायंगल के लिए मिड पॉइंट ऑफ दीज टू साइड, तो इट विल बी ए थर्ड साइड. सो इन दोनों से क्या करेंगे? बाई MPT. ये स्टेटमेंट किसका बेटा? MPT का. MPT क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड. तो मीन्स PQ will parallel to AC and PQ will equal to half of AC, and this is statement 1. Is it clear? Now join S to R. In triangle ACD. देखो, AS equal to SD. Why? It is also given. And CR equal to DR. It is also given. Clear? So by MPT means midpoint theorem. What midpoint theorem says? Line joining the midpoints यानी S and R are the midpoints of side AD and CR. So line joining the midpoints of these two sides will parallel to third side, and third side is AC. So SR will parallel to AC and SR will equal to half of AC, and this is statement 2. कोई confusion? और ये SR parallel to AC ये प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक. नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आप देखोगे, स्टेटमेंट 1 है कि PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड हाफ ऑफ AC इक्वल टू SR. सो PQ इक्वल टू SR एंड PQ पैरेलल टू AC and AC parallel to SR. तो here we can say that कि PQ parallel to SR. ये भी हमें प्रूफ करना था डियर. नहीं, नाउ अब हम इसको ज्वाइन कर दें, P को S से और R को Q से. इन क्वाड्रिलेटरल PQRS. इस PQRS में देखेंगे, देखो क्या है कि PQ इक्वल है किसके? SR के, और PQ पैरेलल है किसके? SR के. और ये क्या किया हमने? जस्ट प्रूव्ड हियर. ओके, तो देखिए इस क्वाड्रिलेटरल PQRS में PQ एंड SR, these two sides are the pair of opposite sides
and in this quadrilateral these pair of opposite sides are equal and parallel to each other. So by 8.8 प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये थर्ड पार्ट था, ये भी प्रूव हो गया। इज इट क्लियर? बहुत इजी है, बस जस्ट रिमेंबर 8.8 प्रॉपर्टी एंड मिड पॉइंट थ्योरम। इज इट क्लियर? सो डू इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। PQR and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. Then we have to prove कि quadrilateral PQRS is a rectangle. Clear? So देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमने ज्वाइन किया A को C से, लिख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to C and proof in triangle ABC. क्लियर? ठीक है, AP इक्वल है डियर PB के, वाई इट इज गिवन। BQ इक्वल टू QC, BQ इक्वल टू QC it is also given. And we know that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle. Here in triangle ABC, line PQ is joining the 2 points P and Q. Those are the midpoints of side AB and BC. So by midpoint theorem we can say that कि PQ is parallel to AC by MPT क्या कहेंगे, PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC, and this is statement 1. Okay, similar in triangle ACD क्या होगा, AS equal to SD and CR equal to DR, means S and R are the midpoints of side AD and side CD. So the line joining these two midpoints will parallel to third side. Third side means AC. So by MPT क्या कहेंगे कि SR parallel to AC and SR equal to half of AC, and this is statement 2. Clear? So now in quadrilateral PQRS, या इससे पहले एक काम कर लेते हैं डियर, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। देखो स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कि हाफ ऑफ AC इक्वल टू SR and this statement saying that कि half of AC equal to PQ. तो here we can say that कि PQ equal to SR and देखिए PQ parallel to AC and AC parallel to SR. So here we can say that कि PQ parallel to SR. Clear? Now in quadrilateral PQRS, PQ equal to SR and PQ पैरेलल टू SR. तो बाय 8.8 प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे A। कोई कन्फ्यूजन? एनी कन्फ्यूजन? दोबारा देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ MPT मिड पॉइंट थ्योरम हमने PQ और SR को इस लाइन AC के पैरेलल प्रूफ किया और इसके हाफ के इक्वल किया। आफ्टर दैट फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हमने बनाया कि PQ इक्वल टू SR एंड PQ पैरेलल टू SR। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS में
द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, सो ड्यू टू दिस PQRS इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ हम क्या करें, अब डॉटेड लाइन से इस BD को ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन आएगा कि सर वाई वी आर ज्वाइनिंग BD। देखो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल, बट टिल नाउ वी हैव प्रूव्ड क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। बस वन स्टेप हम अभी पीछे हैं। तो वो क्या होगा कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई एक एंगल 90 का हो जाए, क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पर, PQRS में PQ या R या S किसी एक को 90 डिग्री प्रूफ करना है। नहीं तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए देखो इन ट्रायंगल ABD आप देखोगे कि जो AP है वो किसके इक्वल है बेटा, PB के, और AS किसके इक्वल है, AS इज इक्वल टू SD। तो फिर बाई MPT क्या कहेंगे कि जो PS है इज पैरेलल टू BD एंड PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD। दिस इज स्टेटमेंट थर्ड। कोई कंफ्यूजन? बट AC perpendicular to BD because quadrilateral ABCD is a rhombus। भाई ABCD क्या है, ABCD is a rhombus and we know that in a rhombus diagonals of a rhombus bisect each other perpendicularly, means AC and BD are perpendicular to each other, clear? And from one and from third, one is saying that कि PQ is parallel to AC, इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट 4। ठीक, तो फ्रॉम इधर कर रहा हूं, फ्रॉम स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड 4। देखो स्टेटमेंट 1 इज सेइंग कि PQ पैरेलल टू AC। देखो इधर AC परपेंडिकुलर टू BD, तो AC के पैरेलल कौन है, AC के पैरेलल है बेटा PQ, और BD के पैरेलल विच साइड, BD PS। ठीक, यानी PQ पैरेलल AC के और PS पैरेलल BD के, और ये दोनों कैसे हैं, 90 का एंगल बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि PQ परपेंडिकुलर टू PS, क्लियर? तो एंगल P विल इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट B, क्लियर? स्टेटमेंट A एंड B इन दोनों को कंबाइन करें। A इज सेइंग दैट कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड B सेइंग दैट कि एंगल P क्या है, 90। एक ऐसा पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। सो हियर फ्रॉम A एंड B quadrilateral PQRS is a rectangle, okay? So do it now. Question number third is saying that कि ABCD is a rectangle, PQR and S are the midpoint of sides AB, BC, CD and AD, then show that कि PQRS is a rhombus, okay? तो करते हैं इसको प्रूव। To prove PQRS is a rhombus, we have to do some construction, and construction is join this diagonal AC and in triangle कौन सा, ABC। इन ABC देखिए AP इक्वल टू किसके, PB के, और ये क्या बेटा गिवन है, एंड BQ इक्वल टू किसके बेटा, CQ के, ये भी गिवन है, क्लियर?
In this triangle, P and Q are the midpoints of sides AB and BQ. So line segment PQ will parallel to third side, यानी AC by midpoint theorem. Means MPT. क्या कहेंगे कि PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC, and that is statement 1. Is it clear? And in triangle कौन सा ACD, in triangle ACD, AS equal to SD and CR इक्वल टू किसके DR के. ठीक है, ये भी गिवन, इट इज आल्सो गिवन. तो बाई MPT क्या होगा, SR क्या इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD एंड CD. तो क्या कहेंगे, SR parallel to AC and SR equal to half of AC. That is statement 2. Clear? From statement 1 and statement 2, what will happen? देखिए AC parallel to PQ and AC parallel to SR. तो क्या कहेंगे कि PQ parallel to SR, half of AC equal to PQ and half of AC equal to SR. So PQ equal to SR also. ठीक हो गया. So in quadrilateral PQRS, ठीक है, तो PQ equal to SR और PQ parallel to SR. तो by 8.8 प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये 8.8 प्रॉपर्टी. तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम और इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट ए. कोई कंफ्यूजन? स्टेटमेंट ए है, यानी क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए parallelogram. But we have to prove PQRS is a rhombus. So what is the difference between the rhombus and parallelogram? एक स्टेप पीछे है अभी हम. देखो कोई भी वो parallelogram whose adjacent sides are equal, then it will be a rhombus. Clear? तो अभी parallelogram तो हो गया है. अगर इनकी एडजेसेंट साइड्स यानी PQ और PS दोनों इक्वल हो जाएं तो क्या होगा, ये रोम्बस हो जाएगा. एक काम करते हैं, जो दूसरा डायगोनल है अदर डायगोनल यानी BD, इसको भी यहां पर हम ज्वाइन कर लें लाइक दिस. और अब ट्रायंगल क्या बना, ABD, यानी नाउ यहां पर लिख देते हैं इस कंस्ट्रक्शन एंड ज्वाइन B to D. ठीक है, तो इन ट्रायंगल कौन सा ABD AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू PB और ये बेटा गिवन है, एंड AS इक्वल टू SD, AS इक्वल टू SD, इट इज आल्सो गिवन. ओके, तो बाई MPT यानी लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड क्लियर. क्या लिखा मैंने, AS इक्वल टू SD और AP इक्वल टू, तो क्या होगा PS पैरेलल टू BD एंड PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD. दिस इज स्टेटमेंट 3. क्लियर? बट AC इक्वल टू BD क्यों, वाई, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल.
क्या ना कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो हियर AC and BD both the diagonals will be equal for this rectangle ABCD. So AC upon 2 will equal to BD upon 2. बोलो, इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट 4. तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1, 2 and 3 क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज सेइंग दैट AC by 2 इज PQ, तो AC by 2 को क्या कहते हैं? PQ. और BD by 2 इज सेइंग दैट BD by 2 इज PS. ठीक, एंड द स्टेटमेंट इज B. देखो, PQ एंड PS बोथ आर द एडजेसेंट साइड्स, दोनों एडजेसेंट साइड है नहीं है, तो फ्रॉम A एंड B, A क्या कहता है कि PQRS is a parallelogram and B is saying that कि PQ and PS means adjacent sides are equal. The parallelogram in which adjacent sides are equal, then it will be a rhombus. So quadrilateral PQRS is a rhombus. Okay, so do it. Question number 4. In this question, this quadrilateral is the trapezium and E is the midpoint of AD. Saying that a line through E is parallel to side AB, so this line will bisect BC. यानी ये लाइन BC को bisect करेगी किस पॉइंट पर? F पर. तो we have to prove कि लाइन सेगमेंट CF इक्वल टू FB. क्लियर? तो इस पॉइंट में कुछ कह दीजिए, सपोज करो O कह दो इसको, कोई दिक्कत? प्रूव. ठीक, इन ट्रायंगल ABD सेइंग दैट कि AE इक्वल टू ED एंड EO पैरेलल टू AB. भाई EF पैरेलल तो EO ऑटोमेटिकली पैरेलल टू साइड किसके? AB के. ठीक है, स्टेटमेंट था क्या? ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड पैरेलल टू अदर साइड. हियर टू सिचुएशन, टू स्टेटमेंट या टू कंडीशंस यहाँ पर क्या होगी? सेटिस्फाई हुई. कैसे? ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड पैरेलल टू साइड AB. Clear? So this line segment will bisect the third side and third side of this triangle will be BD. तो BD का मिड पॉइंट क्या हुआ? O हुआ. तो क्या कहेंगे? By converse of MPT. Clear? तो क्या कहेंगे? OD इक्वल टू OB. कोई कंफ्यूजन? अब देखो, EF पैरेलल टू AB, ये भी गिवन है, एंड AB पैरेलल टू CD, इट इज आल्सो गिवन. देखो, EF पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू CD, तो क्या कहेंगे यहां से कि EF विल आल्सो पैरेलल टू CD. क्लियर? यानी अब ये लाइन EF CD के पैरेलल भी है. तो इन ट्रायंगल BCD देखिए, OB इक्वल टू OD मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड BD and OF is parallel to CD. A line through the midpoint of any one side parallel to other side bisect the third side. यानी F is the midpoint of side BC. क्या कहेंगे? By the converse of किसका? MPT. क्लियर? तो क्या कहेंगे? CF इक्वल टू FB मीन्स F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. क्लियर? इसको आप देखेंगे और
Before doing this, you have to learn converse of MPT. Clear? Do it. Now we are going to question number 5th. In 5th question, ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoint of sides AB and CD, and saying that the line segment AF and CE trisect the diagonal BD at point P and Q. क्लियर? मीन्स हमें जो प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट AF एंड EC आर डिवाइड द डायगोनल BD into 3 equal parts BQ, PQ and DP. These 3 parts are the equal. Clear? Okay. क्या है? Quadrilateral ABCD is a parallelogram. ठीक हो गया? ऐसा है तो डियर AB इक्वल टू किसके? CD के. भाई अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर आल्सो. ठीक है. डिवाइड बाई 2, हम इसको क्या करें? डिवाइड बाई 2 कर दें तो क्या बनेगा? AB upon 2 will equal to CD upon 2 and here AB upon 2 parallel to CD upon 2. Any confusion? देखिए भाई F क्या है? F is the midpoint of CD. So CF equal to DF. बोलो तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? देखिए CF equal to DF है तो इक्वल टू हम कहेंगे हाफ ऑफ CD और इसको क्या कहेंगे? AE इक्वल टू क्या था? EB था तो इसको क्या कह देंगे? हाफ ऑफ AB. क्लियर? तो क्या करें? इस हाफ ऑफ AB को हम रिप्लेस कर सकते हैं AE से भी और B से भी. तो AB अपॉन 2 हम किससे रिप्लेस करें? हियर वी आर रिप्लेसिंग AB अपॉन 2 बाई लाइन सेगमेंट AE. क्लियर? तो AE विल इक्वल टू CD अपॉन 2 को हम कह रहे हैं CF. CD अपॉन 2 मीन्स CF और ये AE पैरेलल टू CF. क्लियर? Now in quadrilateral AECF, क्लियर? AECF तो देखोगे कि AE इक्वल है CF के और AE पैरेलल है बेटा किसके? CF के. देखो ये भी क्या है? AE पैरेलल टू CF एंड AE इक्वल टू CF. क्या लिखेंगे? जस्ट प्रूव. ठीक है. तो बाई 8.8 प्रॉपर्टी तो क्वाड्रिलेटरल AECF इज ए पैरेललोग्राम. हो गया नहीं हो गया? बोलो. अब जैसे ही पैरेललोग्राम कहेंगे तो क्या होगा? हियर CE पैरेलल टू AF. दिस लाइन सेगमेंट CE पैरेलल टू AF. नाउ इन ट्रायंगल किसमें? देखो APB इन ट्रायंगल APB. ठीक है. AE इक्वल है किसके बेटा? EB के. दिस A और इक्वल है नहीं है एंड EQ पैरेलल टू AP. जस्ट प्रूव. C पैरेलल टू AF का ना. दिस लाइन सेगमेंट पैरेलल टू दिस. तो बेटा ये पार्ट और ये पार्ट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. अब क्या कहें? बाई द कन्वर्स ऑफ MPT. क्लियर? कन्वर्स ऑफ MPT. ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड पैरेलल टू अदर साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड. यानी PB इज द थर्ड साइड. सो हियर BQ इक्वल टू किसके? PQ के. इज इट क्लियर? एंड दिस इज स्टेटमेंट 1. कोई कंफ्यूजन? यस. नाउ इन ट्रायंगल किसमें?
CQD, CQD, अगेन CF इक्वल टू FD, CF इक्वल टू FD, क्यों? F इज द मिड पॉइंट एंड FP यानी PF इज पैरेलल टू साइड CQ, बोलिए, बाय द कन्वर्स ऑफ MPT। क्या होता है जी? देखो, लाइन सेगमेंट PF through the midpoint of this side parallel to other side, so it will bisect the third side, यानी DQ is the third side। जो DQ क्या है? थर्ड साइड है इस ट्रायंगल के लिए, तो DP will equal to PQ and this is statement 2। ठीक है, from statement 1 and 2 देखो PQ इधर किसके? BQ के इक्वल तो PQ इक्वल टू BQ एंड PQ किसके इक्वल बेटा? DP के, तो इधर ये भी इक्वल हो गया, तो ये हमारा पार्ट प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर? सो डू इट 1 और 2 टाइम्स इसको वॉच करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे इसको करने की, तो ये 100% आपकी समझ में आएगा। ओके, सो डू इट। 6 क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट कि सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, ये ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, P is the midpoint of this side and R is the midpoint of this side. Both are opposite sides. Line joining these two midpoints is PR. Means PR क्या है? PR is the line joining the midpoints of opposite sides of quadrilateral ABCD. And QS is the line joining the midpoint of these two opposite sides. And we have to prove कि these two lines यानी PR एंड QS बाइसेक्टिंग ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि OP विल इक्वल टू OR एंड OQ विल इक्वल टू OS। सो टू प्रूव दिस वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द डायगोनल AC, डायगोनल AC, and after that join P to Q, P to Q and S to R. Proof in triangle ABC, देखो बेटा AP इक्वल टू किसके? AP इक्वल टू PB एंड CQ इक्वल टू BQ, CQ इक्वल टू BQ बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो क्या कहेंगे? बाई MPT क्या बनेगा? PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ पैरेलल टू AC, और इसको हम कहेंगे बेटा स्टेटमेंट 1। ठीक है, सिमिलरली या प्रूफ कर लेते हैं इन ट्रायंगल ACD, ACD क्लियर? तो AS इक्वल टू SD एंड DR इक्वल टू CR, क्लियर? तो बाई MPT क्या कहता है? MPT लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी SR पैरेलल टू AC एंड SR विल इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको हम क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कहेंगे? हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है बेटा? PQ के, और हियर हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है? SR के, तो PQ इक्वल टू S एंड PQ पैरेलल टू SR। ठीक हो गया? इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, हमने P को S से ज्वाइन किया और R को Q से ज्वाइन कर लिया। ठीक हो गया? PQ इक्वल टू SR एंड PQ पैरेलल टू SR, तो बाई 8.8 प्रॉपर्टी। ठीक हो गया? तो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल PQRS
इज ए पैरेललोग्राम। कोई कन्फ्यूजन? इम्प्लाइज दैट, पता है प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, क्या प्रॉपर्टी है कि इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर। जब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया तो बेटा पी आर एंड क्यू एस बोथ आर द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, सो implies that PR and QS bisect each other. Okay, so do it. C is a right angle triangle and right angle at C. A line through the midpoint M parallel to side BC intersecting AC at point D, and we have to show that कि D is the midpoint of AC, means AD equal to CD, and after that we have to show कि MD is perpendicular to AC, clear, and after that we have to show CM equal to AM and equal to half of AB, clear. So करते हैं देखिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ए एम इक्वल टू किसके बेटा? एम बी के। वाई? बिकॉज इट इज गिवन, एंड एम डी पैरेलल टू साइड बी सी, इट इज आल्सो गिवन बाई द कन्वर्स ऑफ एम पी टी। क्या है कन्वर्स ऑफ एम पी टी? ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखिए ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड, सो इट विल बाइसेक्ट दिस थर्ड साइड ए सी, सो क्या बनेगा? ए डी इक्वल टू सी डी। कोई कन्फ्यूजन? ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हुआ। फॉर द सेकेंड पार्ट देखिए एम डी पैरेलल टू किसके? BC के, यानी MD और BC दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए ये और ये क्या कहते हैं कि ADM विल इक्वल टू ACB। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर। सो implies that ये एंगल कितना था? 90 था, तो क्या कहेंगे कि AC या कहें कि MD विल परपेंडिकुलर टू AC। ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, किसको? C को M से। इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, क्लियर। देखो AD किसके इक्वल है? CD के। जस्ट प्रूफ, अभी तो प्रूफ किया है। AD इक्वल टू कहाँ किया? देखो AD इक्वल टू CD, ठीक है, एंड ADM इक्वल टू एंगल CDM और इक्वल टू किसके? 90 के। ये भी अभी यानी जस्ट प्रूफ, ठीक हो गया। और जो MD है, MD इज कॉमन, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक हो गया। तो ट्रायंगल AMD विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD। समझ में आया नहीं यार? दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्लियर। तो बाई CPCTE से क्या कहेंगे कि AM विल इक्वल टू CM, क्लियर। बट भैया AM किसके इक्वल था? MB के, और ये गिवन था। देन व्हाट यू विल से नाउ कि AM इक्वल टू CM और इक्वल टू किसके बेटा? MB के, क्लियर। नाउ AB इक्वल टू, AB इज दिस, स्प्लिट करेंगे इसको, AM प्लस BM, तो AB इक्वल टू व्हाट इज AM भी और BM भी दोनों ही लाइन सेगमेंट
डियर इक्वल हैं किसके, ए एम और सी एम किसके इक्वल, एम बी के इक्वल है। ए एम और सी एम किसके इक्वल है, एम बी के। तो हम ए एम को तो ये है ही, और एम बी को भी क्या लिखते हैं, ए एम लिखते हैं। क्या बनेगा, ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, सो ए एम इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। ठीक है, आप इसको कह दीजिए कुछ, कोई स्टेटमेंट, चलो 1 ही कह दो और इसको आप 2 कह दो, तो फ्रॉम 1 and 2 तो क्या होगा, ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू एम बी और इक्वल टू क्या बना बेटा, हाफ ऑफ ए बी। ये हमें प्रूव करना था। इज इट क्लियर? सो डू इट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डू इट।